Hello everyone, I Faizia Khidwai welcome you all to Balajee online classes. Today I am here to explain chapter number 5 Agriculture of class 8 Geography. And this chapter is a bit lengthy, that's why I have decided to break it into two parts. This video will probably cover half of your chapter and the remaining half will be explained in the next video. So let's start the chapter. Now, what do you understand by agriculture? Agriculture से आप क्या समझते हैं? Agriculture is basically a Latin word which means, if we break this word agriculture, then ager means piece of land and culture means plowing or tilling. That together makes it plowing of fields or tilling of the fields. Then agriculture is also not restricted only to the growing of the crops, but it also includes rearing of animals, that is animal husbandry. Then agriculture is one of the most oldest activities and it is very important. Why? Because it provides food, shelter and clothing to mankind. Then agriculture is broadly classified into two main categories. First is your subsistence agriculture and second is your commercial agriculture. जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेसिकली डन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. पहला होता है नोमैडिक हर्डिंग, सेकेंड इज योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड थर्ड इज योर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. Nomadic herding में basically क्या होता है? This is basically practiced by those people who rear cattle, yaks, sheep, camels, etc. And these animals are dependent on the natural vegetation. इसीलिए क्या होता है? These herders they keep on moving from one place to another along with their animals in search of fodder. Then the second is the shifting cultivation. Shifting cultivation, it is a very simple and primitive method of farming and कैसे करा जाता है? इसमें क्या होता है? जो एक लैंड होता है बेसिकली उसको आप जलाकर उसको आप बर्न करके उस पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और फिर वहां पर कल्टीवेशन करते हैं. इसीलिए इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट. देन यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली मेज एंड कसावा. एंड ऑल्सो पीपल व्हाट दे डू, दे मूव from this land to another land when the land loses its fertility. जब सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है तो क्या करते हैं लोग? एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां जाकर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं. Then we have the intensive agriculture. अब intensive agriculture क्या होता है? In this method of farming, even from a small piece of land, farmers get a very high production. Why? Because they use good quality of seeds, fertilizers, regular supply of water, and also good methods of irrigation. अच्छी चीज़ें, अच्छे मेथड्स यूज करके छोटे से टुकड़े ऑफ लैंड से, छोटे पीस ऑफ लैंड से क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन फार्मर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है. एंड इट इज मेनली प्रिवेलेंट इन द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. राइस is the main crop which is sown in such kind of farming. Also we have besides that wheat, maize, pulses and oil seeds. Then we have the second type of agriculture, that is the commercial agriculture. Commercial क्या होता है? The main purpose of this kind of agriculture is to sell the produce in the market. जो भी आपने प्रोड्यूस किया है वो आप मार्केट में सेल आउट करोगे. अभी तक हम पढ़ रहे थे अपनी कम्युनिटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एग्रीकल्चर हो रहा था. अब क्या है? अब बेसिकली कमर्शियल पर्पस आ गया. बेसिकली सेलिंग आउट ऑफ द प्रोड्यूस इज द कमर्शियल एग्रीकल्चर. एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज टू मेन फॉर्म्स. ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली हमारी होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. इसमें क्या होता है? दिस इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द मिडिल लैटिट्यूड्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस. कमर्शियल पर्पसेस के लिए कॉर्न ग्रोप्स किए जाते हैं और ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इन सब जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है. एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. Then farms, इसमें जो farms होते हैं they are of very big sizes, spreading over 100 of the hectares, and most of the work here is done using the scientific methods. Scientific methods use करके ये वाली फार्मिंग की जाती है, ठीक है, जैसे कि आपके ट्रैक्टर्स हो गए, आपके सीड ड्रिल्स हो गए, आपके कंबाइंड हार्वेस्टर्स हो गए. देन अगर हम इसको कंपेयर करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर से तो जो अमाउंट ऑफ लेबर है एंड जो कैपिटल अप्लाइड हो रहा है पर यूनिट एरिया इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल. इसीलिए इसे हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं.
Then we have the second type, that is the plantation agriculture. अब plantation agriculture is basically a practice of agriculture which is of a specialization of a single crop. इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप जो होता है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड में बोया जाता है, ठीक है, और उसमें साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उसकी जो प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो भी प्रोड्यूस ऑब्टेन होता है वो मार्केट में जाने से पहले भी प्रोसेस होता है, राइट. मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन बिकम्स आर ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. और जितना भी मोस्टली इनका जो भी आपका प्लांटेशंस होते हैं ये मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ही जो भी क्रॉप्स में बोए जाते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में बोए जाते हैं. Then the plantations are in large size and large number of laborers are involved in such kind of farming. Then these plantations are originally developed by Europeans. इनको यूरोपियंस ने डेवलप किया था और इनका जो प्रोड्यूस होता है वो दोनों नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में सेल आउट किया जाता है. देन जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव टी इन इंडिया, देन वी हैव कॉफी इन ब्राजील एंड कोलंबिया, we have banana in Latin America. These are the some examples of plantation agriculture. Then there are some more type of farmings that we are going to discuss now, and the first one is mixed farming. आपकी mixed farming क्या होती है? बेसिकली ये एक टाइप है, एक प्रैक्टिस है फार्मिंग का जिसमें क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं और साइड बाय साइड आप रियरिंग भी करते हो एनिमल्स की, मोस्टली कैटल्स, राइट. तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका एक तरह से आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं और एक तरह से आपको फूड क्रॉप्स भी मिल रहे हैं, ठीक है. इसमें जो मेन क्रॉप्स सो किए जाते हैं दैट आर दी व्हीट, बार्ले, मेज. देन एनिमल क्या होता है कि जो भी इन सारे जो भी क्रॉप्स सो किए जाते हैं उन क्रॉप्स का जो लेफ्ट ओवर होता है वो यूज कर लिया जाता है एज अ फूड फॉर देयर एनिमल्स. और जो एनिमल्स का जो काउ डंग होता है वो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है फॉर दी क्रॉप्स. तो इस तरह से एक सर्किल चलता है, ठीक है. देन जो भी प्रोड्यूस होता है वो जो फार्मर्स होते हैं वो मार्केट में सेल आउट करते हैं और अपनी इनकम जनरेट करते हैं. देन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एक्सेट्रा. देन द सेकेंड टाइप इज डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे. मीन्स वो प्रैक्टिस जिसमें एनिमल्स की रियरिंग की जाती है मेनली फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसमें ये कहाँ पे होता है, ये बेसिकली वहां पर होता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही कूल होती है, ठीक है. एंड इट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन सेंटर्स. अर्बन सेंटर्स में क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करता है फार्मर वो इजिली टाउन्स में जाकर सेल आउट कर सकता है, राइट. Then the third category is the horticulture. Horticulture. What do you understand by horticulture? Horticulture का आंसर है the growing of fruits and flowers is called horticulture. Means फूलों की और फलों की जो खेती होती है उसे हम कहते हैं horticulture. And they are in great demand both in towns and cities. India also grow a variety of roses and marigolds for marketing and also it has a very rich variety of fruits. Fruits की भी बहुत अच्छी variety होती है इंडिया में, ठीक है. और ये जो हमारा horticulture होता है इसमें वेजिटेबल्स का भी कल्टिवेशन होता है बट अवे फ्रॉम मार्केट. मार्केट से दूरी पे वेजिटेबल का कल्टिवेशन होता है और जो वेजिटेबल्स जो भी फिर बाद में ऑब्टेन होती है उनको हम मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क etc. Then the fourth category is cooperative farming. Cooperative farming is a type of farming which is practiced in which farmers क्या करते हैं, in which farmers they pool their resources together and then they manage the farming operations under a democratic setup. क्या करते हैं, सारे जितने विलेजर्स होते हैं वो अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक साथ मिल के फार्मिंग की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है. मतलब इसमें एक एसोसिएशन बन जाता है कल्टिवेटर्स का जिससे क्या होता है बेटर यूटिलाइजेशन होता है मैन पावर का, ठीक है. और उससे क्या होता है आपका प्रोड्यूस अच्छा निकलता है, आपकी इनकम जनरेट होती है और ऑल्सो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हो. एंड दिस काइंड ऑफ farming is basically practiced in Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and also in India. Then the fifth category is collective farming. This kind of farming was widely practiced in Soviet, Russia and other European countries. The farm was managed by a committee headed by a farm manager. The managing committee allocate work to different labor groups which is called as brigades. इसमें क्या होता है, एक कमेटी होती है जिसका एक हेड होता है, ठीक है. और ये कमेटी जो होती है सारे लेबर्स को ग्रुप में डिवाइड करती है जिनको हम ब्रिगेड्स बोलते हैं और फिर उनको उनके अकॉर्डिंगली जो है
वर्क प्रोवाइड करती है और वर्क के अकॉर्डिंग ही उनको पे करती है, ठीक है। फार्मर्स व्हाट दे वर गिवन हाउसेस ऑन दी फार्म, उनको फार्म पे ही हाउस दिया जाता है, प्राइवेट प्लॉट्स दिए जाते हैं जहाँ वो कल्टीवेशन कर सकें, और उन्हें परमिशन होती है कुछ एनिमल्स भी वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज। Then the last is the state farming. State farming is basically a typical kind of farming which is practiced in Russia. यहाँ पे जो स्टेट फार्म्स होते हैं बेसिकली वो लार्ज एरियाज में होते हैं, ठीक है, और वो मैनेज होते हैं बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इसमें जो भी आपके जो मेथड्स यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके टेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल मशीनरी यूज होती है, साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है और इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो आई एम वाइंडिंग अप टिल हेयर ओनली, ठीक है। Thank you so much for listening me out, and the half of the remaining part of your chapter will be covered in the next video. Thank you and have a nice day.